میرا نام عائشہ ہے. میری عمر 22 سال ہے. رنگت صاف، لمبے گھنے بال اور بڑی آنکھیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب میں مسکراتی ہوں تو چہرہ اور بھی کھل اٹھتا ہے. میں سادہ رہنے والی لڑکی ہوں. گھر میں زیادہ تر شلوار قمیض پہنتی ہوں اور بناوٹ سے دور رہتی ہوں. ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز سادہ مگر لوگوں کی نظریں بڑی تیز ہیں. کبھی کبھی باہر نکلوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوں. میرے گھر میں امی، ابو اور میرا سوتیلا بھائی حمزہ رہتا ہے جو مجھ سے 2 سال بڑا ہے. قد لمبا، طبیعت سنجیدہ مگر دل کا بڑا نہیں. وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹاتا ہے اور باہر ایک چھوٹا سا کاروبار بھی سنبھالتا ہے. جب میں 15 سال کی تھی تب وہ ہمارے گھر آیا. شروع میں ہمارے درمیان زیادہ بات نہیں ہوتی تھی. وہ اپنے کمرے میں مصروف اور میں اپنی دنیا میں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے اور ہم ایک دوسرے کے عادی ہونے لگے. کبھی کچن میں ساتھ کام کرتے تو کبھی چھت پر بیٹھ کر شام کی ہوا محسوس کرتے. ایک دن امی گھر پر نہیں تھیں اور ابو کام پر گئے ہوئے تھے. میں کچن میں روٹی بنانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آٹا ٹھیک سے تیار نہیں ہوا تھا. حمزہ اندر آیا اور مسکرا کر بولا کہ تمہیں تو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر سکھا دو. وہ قریب آیا اور ہم دونوں نے مل کر کام شروع کیا. اس دوران ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی اور ایک نیا احساس بھی، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے مختلف نظر سے دیکھنے لگے ہوں. اس کے بعد ہماری باتوں میں ہلکی سی تبدیلی آنے لگی. ہم زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے. شام کو چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے. کبھی وہ میرے بالوں کی تعریف کرتا تو کبھی میں اس کی محنت کی. ان لمحوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی جو پہلے نہیں تھی. آہستہ آہستہ یہ معمول بن گیا کہ وہ صبح مجھے جگاتا، ہم ساتھ چائے پیتے اور دن کا آغاز کرتے. ایک دن گھر کی صفائی کرتے ہوئے میں اوپر والی الماری تک پہنچنے کے لیے اسٹول پر چڑھی تو میرا توازن بگڑنے لگا. حمزہ نے فوراً مجھے سنبھال لیا اور کہا کہ احتیاط کیا کرو. اس کی آواز میں فکر تھی جو دل کو لگی. وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان ایک خاموش سی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی گئی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرام محسوس کرنے لگے تھے. ایک بار ہم دونوں ایک فلم دیکھ رہے تھے جس میں رشتوں کی اہمیت دکھائی جا رہی تھی. فلم ختم ہونے کے بعد بھی ہم کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، جیسے دونوں کچھ سوچ رہے ہوں. پھر اس نے ہلکی آواز میں کہا کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے. میں نے اس کی بات سن کر صرف مسکرا دیا مگر دل میں ایک ہلچل سی تھی. اس کے بعد ہم کبھی گھر کے پیچھے باغ میں چلے جاتے، وہاں خاموشی میں بیٹھ کر باتیں کرتے. وہ کبھی پھول توڑ کر مجھے دیتا اور کہتا کہ یہ تم پر اچھا لگے گا. میں ہنس دیتی مگر اندر کہیں یہ سب کچھ مختلف محسوس ہوتا. ہماری باتیں اب صرف عام موضوعات تک محدود نہیں رہیں بلکہ زندگی، خوابوں اور احساسات تک پہنچ گئی تھیں. ایک رات ہم اپنے اپنے کمروں میں تھے مگر باتوں کا سلسلہ فون پر جاری تھا. اس نے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا ہے جو ابھی سمجھ نہیں آیا؟ میں نے کہا شاید ہاں. اس نے کہا کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے. اس کے بعد کچھ لمحوں کی خاموشی رہی جو بہت کچھ کہہ گئی. دن گزرتے گئے اور ہم دونوں کے درمیان ایک انکہی سی کہانی بنتی گئی. پھر ایک دن گھر میں ایک تقریب کی تیاری شروع ہوئی. رشتہ دار آ رہے تھے اور ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا. اس دن بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مصروف رہے مگر دل کے اندر وہی سوال گردش کر رہے تھے کہ یہ رشتہ اصل میں کیا ہے. ایک طرف اپنائیت تھی اور دوسری طرف ایک انجانی سی الجھن، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے ہماری کہانی نے ایک نیا رخ لینا شروع کیا. ایسا رخ جس نے ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. وقت گزرتا گیا مگر ہمارے درمیان وہ خاموش سی قربت اور ان کہی باتیں مزید گہری ہوتی گئیں. میں اکثر خود سے سوال کرتی کہ آخر یہ احساس کیا ہے جو نہ مکمل طور پر سمجھ آتا ہے اور نہ ہی نظر انداز ہوتا ہے. حمزہ بھی بدلتا جا رہا تھا. پہلے وہ صرف ایک ذمہ دار اور
संजीदा सा भाई लगता था, मगर अब उसकी बातों में एक अलग सी नरमी और अपनायत महसूस होती थी। हम पहले की तरह हंसते खेलते जरूर थे, मगर अब हर बात के पीछे एक छिपी हुई संजीदगी भी थी। एक दिन हम दोनों छत पर बैठे थे। शाम का वक्त था और आसमान हल्के नारंगी रंग में ढल रहा था। हमजा ने अचानक कहा कि आयशा, कभी कभी इंसान को अपने दिल की बात समझने में बहुत देर लग जाती है। मैंने उसकी तरफ देखा मगर कुछ कहा नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, तुम भी महसूस करती हो ना कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। मैंने नजरें झुका लीं क्योंकि मेरे पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था। बस इतना जानती थी कि वाकई सब कुछ बदल चुका है। उसके बाद हमारी बातें और भी गहरी होने लगीं। हम अपने ख्वाबों, खौफ और मुस्तकबिल के बारे में खुलकर बात करने लगे। एक अजीब सा एतमाद बन गया था हमारे दरमियान। फिर एक दिन उसने बताया कि घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन हुई जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर उसे मुबारकबाद दी, मगर अंदर से जैसे कुछ टूट सा गया था। हमजा ने मेरी आंखों में देखकर पूछा कि तुम खुश नहीं हो। मैंने फौरन कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मगर वो शायद मेरे दिल की कैफियत पढ़ चुका था। इस दिन के बाद वो भी कुछ खामोश सा रहने लगा, जैसे वो भी किसी उलझन में हो। फिर कुछ दिन बाद उसने कहा कि वो इस रिश्ते के बारे में ज्यादा पुरएतमाद नहीं है। मैंने हैरत से पूछा क्यों, तो उसने सिर्फ उतना कहा कि कुछ फैसले दिल के बगैर नहीं किए जा सकते। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मगर मैं फिर भी खामोश रही। हालात ऐसे ही चलते रहे यहाँ तक कि एक दिन उसने मुझे बैठा कर कहा कि वो मुझसे एक अहम बात करना चाहता है। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में अजीब सा इत्तेराब। मैं घबरा गई और खामोशी से उसकी बात सुनने लगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो हम दोनों से छिपाई गई थीं। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा हम समझते आए हैं। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब। उसने एक पुरानी फाइल निकाली और मुझे दी। मेरे हाथ कान पर रहे थे जब मैंने उसे खोला। इसमें कुछ कागजात थे जिनसे पता चल रहा था कि हमारी खानदानी कहानी में कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई थीं जिनका हमें कभी इल्म नहीं हुआ। मैं कुछ लम्हों के लिए साकित रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब का मतलब क्या है। हमजा ने कहा कि उसने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो घर को टूटने से बचाना चाहता था, मगर अब वो सच छिपाना नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। मैं सोच रही थी कि अगर सब कुछ वैसा नहीं जैसा हम समझते थे तो फिर हमारे जज्बात की हकीकत क्या है। क्या ये सब सिर्फ वक्त का इतर था या वाकई हमारे दरमियान कुछ ऐसा था जिसे हम नाम नहीं दे पा रहे थे। मैंने खुद को संभलने की कोशिश की और उसे कहा कि हमें जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमें वक्त चाहिए ताकि हम सब कुछ ठीक से समझ सकें। उसने मेरी बात मान ली और कहा कि वो भी यही चाहता है। इस रात मैं देर तक जागती रही, मादी के हर लम्हे को याद करती रही और ये सोचती रही कि हमारी कहानी आखिर किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ वो रिश्ता था जिसे हम हमेशा से मानते आए थे और दूसरी तरफ वो सच था जो अचानक हमारे सामने आ गया था। इन्हीं सोचों में गुम मैंने महसूस किया कि जिंदगी कभी भी इतनी सादा नहीं होती जितनी हम समझते हैं, और बाज़ औक़ात सच्चाई हमें वो सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। इसी उलझन और बेयकीनी के साथ हमारी कहानी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना था और हर एहसास को पहचानना ज़रूरी था। इस रात के बाद हमारी जिंदगी जैसे किसी नए इम्तिहान में दाखिल हो गई। हम दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अपने अपने ख्यालों में गुम रहने लगे। बातें कम हो गई मगर खामोशियों में पहले से ज्यादा वजन आ गया। मैं जब भी हमजा को देखती तो दिल में अजीब सा सवाल उठता कि वो मेरे लिए क्या है और मैं उसके
लिए क्या हूँ वो भी शायद उसी कश्मकश से गुजर रहा था, क्योंकि इसकी आंखों में एक बेचैनी साफ नजर आती थी। चंद दिन हमने एक दूसरे से थोड़ा फासला रखा ताकि खुद को समझ सकें। मैंने खुद को पढ़ाई और नौकरी की तलाश में मसरूफ करने की कोशिश की, जबकि वो अपने कारोबार में पहले से ज़्यादा वक्त देने लगा। मगर सच ये था कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते थे। आखिर एक शाम उसने मुझे फिर से बात करने के लिए बुलाया। हम छत पर बैठे थे जहां से हमारी कहानी ने कई बार नया मोड़ लिया था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा कि वो उस उलझन से भागना नहीं चाहता, बल्कि उसे समझना चाहता है। मैंने भी पहली बार दिल की बात मानते हुए कहा कि मैं भी उसी कश्मकश मैं हूं और शायद हमें सच का सामना करना ही होगा। हमने तय किया कि सबसे पहले हम अपने एहसासात को वक्त देंगे और किसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे खानदान के लिए भी अहम होगा। इसके बाद हमने अपनी जिंदगी को दोबारा तरतीब देने की कोशिश शुरू की। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। हमजा ने अपने कारोबार को मज़ीद मजबूत किया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें फिर से शुरू हुई, मगर अब उनमें एक संजीदगी और पुख्तगी आ चुकी थी। हम एक दूसरे को समझने लगे थे बगैर किसी दबाव के। वक्त के साथ साथ हमें ये एहसास हुआ कि बाद रिश्ते नामों के महताज नहीं होते, बल्कि समझ, एहतराम और हुदूद के साथ खूबसूरत बन जाते हैं। एक दिन हमजा ने मुस्कुराकर कहा कि शायद हमें अपने रिश्ते को किसी एक लफ्ज़ में कैद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने भी उसकी बात से इत्तेफाक किया, क्योंकि अब हम दोनों जान चुके थे कि असल चीज़ एक दूसरे की इज्जत और आतिमाद है। हमने फैसला किया कि हम अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजारेंगे और माजी की उलझनों को अपने मुस्तकबल पर हावी नहीं होने देंगे। घर का माहौल भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। उम्मी अबू को भी हमारी संजीदगी और समझदारी महसूस होने लगी, और यूं हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गई जहां हमने खुद को और अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। न कोई गैर ज़रूरी जज्बाती बोझ और न ही कोई बेनाम सा खौफ, बस एक मजबूत दोस्ती, एतमाद और एक दूसरे के लिए खुलूस। आखिर में मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलती। कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें खुद को पहचानना पड़ता है और सही फैसला करना पड़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमें बताएं कि आपके नज़दीक ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है, क्योंकि हर इंसान का जवाब मुख्तलिफ होता है और शायद उसी में ज़िंदगी की खूबसूरती छिपी होती है।